Good evening, everyone. On behalf of International Homeopathic Foundation, I, Dr. Amita Arora, welcome you all today. Today, we have with us a very good and a great speaker who has an international exposure as well, Dr. Pankaj Agarwal. Dr. Pankaj Agarwal, International Homeopathic Foundation welcomes you. Just to introduce IHF to all those people who are new to us, IHF was founded in the year 2015, which aims to promote homeopathy through academics and integrated approach. Since inception, we have organized various free health camps, seminars, homeopathic medical education series. The most talked about 3 days successful International Homeopathic Congress was organized at Taj Vivanta Dwarka in April 2016, where more than 250 doctors, researchers participated globally. We had virtual International Homeopathic Summit and mega panel discussion during COVID-19. And many of the eminent speakers, homeopaths, allopaths, dietitian, people from CCRH had joined us. So these are the names of the very well-known speakers who had joined us during the mega panel discussion. IHF has also organized joint webinars with Lung Care Foundation to create awareness in society against increasing pollution and its harmful effect. We have proposed credit system for homeopathic doctors to Ayush department. IHF has started a learning campaign on social media, which is named by Let's Learn Together, and we have completed more than 100 days now with the help and support of all the doctors. So thank you everyone who are being part of this major campaign which we have organized. So the management of team of IHF consists of Dr. R.N. Wahi, Dr. Muktinder Singh, Dr. Amita Arora, Dr. Bhavna Malhotra, Dr. Monica Singh, Dr. Gurbeer Kaur, Dr. Suman, and Dr. Vinod Madan. We welcome Dr. Pankaj Agarwal sir today with his topic, Clinical Understanding of LM Potencies. Before we move forward, I request Dr. Bhavna to introduce Dr. Pankaj Agarwal to our audience. Over to you, Dr. Bhavna. Yeah, good evening all. वैसे तो डॉक्टर पंकज इतने पॉपुलर हैं हमारे होम्योपैथिक academic circles में. He doesn't need introduction as such, but sir carries a legacy of homeopathy, I should say, with 3 generations of homeopaths in the family. So Dr. Pankaj is a Delhi-based senior homeopath and academician. He has over 32 years of experience as a practicing homeopathic physician. He has been teaching homeopathic medical students for 20 years and has been an examiner besides being a guide and resource person for MD students for over 20 years. Dr. Pankaj has mentored several students to be successful homeopathic doctors too. He has been vice principal and principal at a reputed homeopathic medical college and has conducted workshops, seminars, medical and health camps, etc. for over a period of 2 decades. He has been a clinical researcher too for over a decade and published a host of research and review papers in national and international journals and newspapers and magazines. He has presented various radio talks, TV shows, and other presentations. So over to Dr. Pankaj. We are keen to listen to this very interesting topic today. Thank you. Thank you, Dr. Bhavna. Over to you, Dr. Pankaj sir. Now I will stop my slides and you can start your session. Thank you very much, IHF. Thank you very much, Dr. Amita. Thank you very much, all the office bearers of the IHF. And thank you, Dr. Bhavna, for introducing me. The one-line introduction is that I am a student of homeopathy, and more the experience is coming, I am finding to be more like a student. That would be the best way. And this is, I think, we are doing actual learning by such webinars. Thanks to this technology, we are able to connect without much of hassles. Thank you, IHF. Let me start and share my presentation before everyone. Yes, sir. तो हम हिंदी इंग्लिश मिला के बात करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसमें? बिल्कुल परफेक्ट सर। ओनली इन इंग्लिश? नहीं सर, आप इंग्लिश में कर सकते हैं बात।
अच्छा ठीक है, okay. तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो एलएम पोटेंसी की बात करने वाले हैं, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आज मेरे को जो भी लोग सुन रहे हैं इसमें से बहुत सारे लोग मेरे को जानते भी हैं, और आज की क्लास का ये मतलब बिल्कुल ना निकाला जाए कि मैं ऑग्नोन की क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो एक टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस है और टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके अंदर एक ये वाली इमेज है कि ठीक है, मेरा कोई भी प्रेजेंटेशन होगा तो उसमें ये सब बातें होने वाली हैं कुछ ना कुछ। तो मैं आपको बताता हूँ एलन पोटेंसी का एक मेरा रीसेंट केस जो मैंने अभी किया अपनी डॉक्टर सलेहा अग्रवाल के साथ। एक 33-34 इयर्स एज की एक फीमेल आई, एंड शी प्रेजेंटेड विद ए पेन इन द पेरिनियल रीजन. And in that pain, when investigations were done and everything, it was found that she was having the perivaginal abscess, very difficult and very peculiar location, and it was bilateral. Now you imagine, if you think of the anatomy, every surgeon was in trouble that how to drain this abscess. This lady, she has more than 75 learned physicians and surgeons in their family, but then they were also in the fix that what to do with this abscess, and she was in terrible pain and lot of difficulties, you can understand. And I was also treating for a couple of weeks, and really means giving the medicine, and it was not really giving that lasting improvement, because symptomatic some improvement was coming, and then it is further on the rise. So she came to the clinic. I asked Dr. Saleha Agarwal to just go into the details of the case and the, we call it anamnesis, the detailed past history of the case. तो उसमें जब इतना डिटेल लिया गया तो एक बात समझ में आई, वहां से निकल के आई कि शी वॉज नॉट बीइंग वेल आफ्टर हैविंग द चिकन पॉक्स इन हर चाइल्ड. उसके बाद से एक बात मिलती है कि एक रेकरेंट कांस्टेंट उसको एब्सेस हियर एंड देयर होते थे. एंड यू कैन अंडरस्टैंड, जिस तरह का फैमिली बैकग्राउंड मैंने बताया, they were taking the best of the antibiotics, they were applying best of the ointments for that, and getting rid of all such abscesses which were the actual indications of the vital force to tell that वो चिकन पॉक्स पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है. नाउ द रिक्वायरमेंट वाज कि उसको ठीक किया जाता, but every time she's thereafter recently in couple of months she started having the abscess and everything in the perineal area and the buttocks area and all that pelvic region. This is for the first time it just went in, and in a very difficult and peculiar location. तो ऐसे circumstances में you can understand कि patient का किस तरह का हाल होता होगा. And me and Dr. Saleha, we deliberated on the case, and we decided to give her the melendrinum, and that in LM potency. Because the topic is here LM potency. Now I tell you, we were giving the LM potency in a 3 hours period, and in the first 5 days, she relieved a lot, and she consulted the concerned surgeons, and they investigated and they examined everything, and they were surprised where that abscess has gone. And when they were told that this is how the medicine is given, so they felt all right, it is good, at least she was saved from such a ordeal of going into the draining of abscess of such kind of operation. And thereafter they were anticipating sure short complications and what not, you all can understand. So this case really proves the first edition of the Ognon,
द फर्स्ट पेज फ्रेज, क्या कहता है वो फेज? आपको सबको याद होगा, आप लोगों ने इसको अपने अंडर ग्रेजुएट कॉलेज ईयर्स में खूब अच्छे से याद किया होता है, बिकॉज ये सब पूछा ही जाता था वाइवास एंड एवरीथिंग में। तो इसका क्या मतलब यही है कि जो थोड़ा सा भी स्लाइट एफर्ट ह्यूमन बीइंग्स अगर डिस्कवर करने के लिए करें ग्रेट ट्रुथ को, तो थोड़े से एफर्ट से इसको अनकवर किया जा सकता है इस ट्रुथ को। किस पर्पस के लिए? फॉर द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन रेस। और इसी बात को ऑसलर कहता है कि कौन लोग इसको करेंगे। ऑसलर इज ए वेरी वेल नोन figure in the medical sciences, and especially he wrote extensively on the history of medicine, which is something very very important. And I really learned this subject from Dr. Elim Khan sir, for which gives lot of understanding and depth that what are you doing and what all others are doing. So Osler used to say, medicine may be considered as arising out of the primal sympathy of man with man. ये बेसिक इमोशन है, इसके बगैर आई डोंट थिंक कि कोई डॉक्टर हो सकता है। और ये जो एक डिजायर है कि सामने वाला जो बहुत दुख में है, तकलीफ में है, नीड में है, सिकनेस में है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, दिस वाज सो मच इमेंस इन द हैनिमन, and that was the reason that he was blessed with in our Indian context by the Saraswati Ma, and he was able to discover this great truth which we all are practicing and we all are discussing and we all are deliberating, sharing, and you know, sharing is a blessing. तो अब जब इसमें हम बात करें, in the same spirit, Dr. Samuel Hahnemann, he discovered and then cultured the growth of the healing art. What was it? It was similia similibus curantur. This was his basic doctrine on which he built everything. And what was his mission in life? That we all know aphorism 1 and aphorism 2. And he believed in demonstrable, verifiable experiments. अगर आप पूरी हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन को पढ़ेंगे, टू माई बेस्ट ऑफ द नॉलेज, आपको ये पता लगेगा कि अगर किसी ने मेडिकल फील्ड में सबसे पहले कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी को फॉलो किया है, रिसर्च मेथोडोलॉजी को यूज किया है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ वन स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट रखा है, दैट इज हैनिमन। पूरी मेडिकल हिस्ट्री में 4 वेल नोन फिगर्स है। सबसे पहला हिप्पोक्रेटिस, पैरासेल्स, हैनिमन, एंड लाइक दिस। ये जो लोग थे, इन लोगों ने एक ऐसे एक्चुअल कंट्रीब्यूशंस किए हैं, गैलन, जिनकी वजह से आज हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। एंड देयर इज ए कंप्लीट वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ मेडिकल सिस्टम्स, एंड हर मेडिकल सिस्टम की अपनी कोई ना कोई गुडनेस है जो कि ह्यूमन रेस को नीडेड है। He believed in demonstrable, verifiable experiments, and he was bold enough to change his views on the basis of his always continuing experiments. तो हम बहुत बार हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा हेड ऑन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ कि ये हैनिमन का तरीका ठीक है, ये हैनिमन का तरीका मैं फॉलो करता हूँ। बट द पॉइंट इज दैट राइट फ्रॉम द 1790 टिल 1842, अगर हैनिमन को ट्रैक करेंगे आप, और उस ट्रैक करने में आपको पता लगेगा कि उसने इतने एक्सपेरिमेंट्स और इतने सारे तरीके निकाले हैं कि हम सब कहीं ना कहीं हैनिमन को फॉलो करते हैं। दिस वाज माय अंडरस्टैंडिंग, जिसपे मैंने एक प्रेजेंटेशन किया था साउथ दिल्ली होम्योपैथिक एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे, कोवर्ट हैनिमन रिवील्ड। कभी भी ऐसा रहेगा और आईएचएफ मेरे को कभी दोबारा मौका देगा तो हम उसको दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं, टू नो कि हैनिमन की कितनी सारी बातें हम लोग अलग अलग ढंग से फॉलो करते हैं। और
हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो अलग अलग स्कूल हो गए हैं वो हैनमिन की एक बात, हैनमिन के अफोरिज्म की एक लाइन को लेकर के उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव वर्क किया है। तो वही सिर्फ हैनमिन नहीं है, वही सिर्फ होम्योपैथी नहीं है, वो बात हमको उसके अंदर से सीखने को मिलती है। हैनमिन को एक साथ लॉन्गिट्यूडनली पढ़ के समझ में आती है हम लोगों को। और प्रॉब्लम क्या थी हैनमिन की, दैट ही वाज ए नेवर सेटिस्फाइड परफेक्शनिस्ट मैन। उसको क्या था कि मैं बेस्ट को भी बेटर कर दूं। तो वो जो इस तरह का एटीट्यूड रखने का था उसका, और वो एक बात एक अफोरिज्म में कहता है हैनमिन, दैट आई वांट होम्योपैथी यू नो टू द मैथमेटिकल सर्टेनिटी। अफोरिज्म 147 फुटनोट समवेयर ही राइट्स कि मैं होम्योपैथी को बिल्कुल मैथमेटिकल सर्टेनिटी तक लेकर के आना चाहता हूं। और यही सारी बातों के ऊपर इसने इतना सारा काम किया। हम जानते हैं दैट ही पब्लिश्ड 6 एडिशंस ऑफ द ऑर्गनॉन। और जब हम देखते हैं कि उसका जो 5th एडिशन आया था 1833 में, जहां पे हमको सेंटेसिमल स्केल का इंट्रोडक्शन मिलता है, लेकिन बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से he was really not satisfied with the centesimal scale of the potencies. Not that they were not working, but there are certain group of cases where this centesimal scale was really troubling Hahnemann how to handle that. I'll come to all those things. So in the later years of life he experimented, and वहां से उसका ये 50 मिलीसिमल का एक तरह से इवोल्यूशन हुआ। और कैसे कैसे हुआ, उसका पूरा इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या रहा, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। LM potency has got a wide scope in variation in the dose. सबसे बड़ी बात है कि डोज को वेरी करना, डोज के रिपीटिशन के बारे में हमारे को टेलर मेड प्रोग्रामिंग करना, ये सारी बातें हम LM potency के अंदर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो लोग बहुत LM potency करते हैं, हम लोगों ने अपने अंदर क्लासेस क्रिएट कर लिए दैट आई एम ओनली ए मदर टिंचर प्रिस्क्राइबर, आई एम ओनली ए हाई पोटेंसी प्रिस्क्राइबर, आई एम ओनली ए LM potency prescriber, like this. I think not really needed. It is not that doctor decides, it is the patient, the condition of the patient, the symptoms and the totality of the patient, the sensitivity of the patient, that actually decides what potency, in how much quantum, and in how much of repetition. These are the 3 legs of the posology which is needed to be understood. And that is what, after the case checking, only the patient, the state of the patient will decide. So हम लोग को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि LM potency उसको तो भाई मैं यूज ही नहीं करता हूँ, मैं तो उसको ट्रस्ट ही नहीं करता हूँ। लाइक देयर वाज एन एरा जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर्स रहे, बहुत अर्ली इनिशियल टाइम में इन कोलकाता स्पेशली, जिन लोगों का LM potency पे कोई ट्रस्ट ही नहीं था। तो वो एक बात है, बट देन इससे होगा क्या, दैट वी आर गोइंग टू बी अनफॉर्चुनेट कि हम बहुत सारे ऐसे केसेस जो LM पोटेंसी से निकल सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक केस आपको बताया, एक केस और मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद पड़ गया कि एक पेशेंट जिसका कि गॉलब्लैडर, मल्टीपल गॉलब्लैडर स्टोन्स थे, उसका केस का ट्रीटमेंट चल रहा था। यू कैन अंडरस्टैंड दैट CBD का, कॉमन बाइल डक्ट का जो साइज होता है नॉर्मली वो 4-5 mm के करीबन होता है। अब एक स्टोन ऐसा था जो करीबन 6 mm का था, वो उसके CBD में जाके स्टक कर गया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलोडोकोलिथियासिस। एंड उसके इस कोलोडोकोलिथियासिस के कंडीशन में उसको इतना सीवियर पेन था, यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या पेशेंट के साथ हुआ होगा। एंड इवन इन दैट केस शी ड्रॉप्ड इन माय क्लिनिक। मैंने देखा उसको, एंड विद द टोटलिटी एवरीथिंग डन, एंड कैमोमिला LM potency was given. To my best of the surprises, every day, ultrasound scanning was done to know what is happening. So I have ultrasounds and the reports of the doctor of ultrasound. He said, second day that stone became dust.
Thereafter, it slowly passed off from the CBD to the second part of the duodenum and passed through the stool up. And pain gone, and the obstructive jaundice gone, and because of the obstructive jaundice, she was itching a lot. That also gone. Like that, LM पोटेंसी ऐसे केसेस के अंदर भी आपको ऐसे रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट देती है कि आपको ये लगता है कि ये सब बड़ा मिरेकुलस है. तो वो हम कब कर सकते हैं? जब हम पोटेंसीज को राइटली चूज करें अकॉर्डिंग टू द पेशेंट. तो LM potency is an effective weapon to eradicate the disease, considering the mission of aphorism 2 to provide rapid, gentle and permanent cure. Now, यहाँ थोड़ा सी बात मेरे को करना चाहिए कि जब हम रैपिड की बात करते हैं तो यहाँ टाइम डायमेंशन को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. जब हम जेंटल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे किसी भी तरह के ड्रग्स के, दवा के साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट, उसके कोई भी अनटुवर्ड इफेक्ट्स को बचाने के लिए हम जेंटल बात कर रहे हैं. और एक वर्ड जो हमारे यहाँ कई बार बड़ा परमानेंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि परमानेंट क्या होता है. यहाँ परमानेंट को बाद में पढ़ो. आप रिकवरी, रेस्टोरेशन, क्योर वर्ड को पहले पढ़ो. उसका रहना, जैसे आजकल आप देखते होंगे कितने पेशेंट आते हैं तो लॉन्ग कोविड. व्हाट इज लॉन्ग कोविड? यही तो है कि वो ठीक ही नहीं हुआ पेशेंट. हेनमिन कह रहा है कि आपकी दवा देने के बाद आफ्टर इफेक्ट में बीमारी लिंगरिंग होके चल रही है. पेशेंट को वायरल फीवर हुआ, दवा दिया, फीवर ठीक है, लेकिन वो बहुत वीक है, उससे अपना जो भी डे टू डे वर्क है वो नहीं होता, वो अपना ऑफिस अटेंड नहीं कर सकता, वो अपना वर्क नहीं कर सकता अपने एनर्जी एंड विगर के साथ पे. वो नहीं होना चाहिए. तो ये वाली बात को ध्यान में रख करके इस तरह के वर्ड हेनमिन ने यूज किए थे. तो ये सारी बात को लेते हुए जब हम आगे चलते हैं तो हेनमिन ने हमारे को पोसोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस दिए. अगर पूरा एक देखेंगे, एक छोटा सा ट्रैक मैंने इसमें भी बनाया है अगर उसकी पोसोलॉजी का, वो इसमें आगे आएगा. तो हेनमिन ने जो हमको मेथड दिए, ही स्टेटेड द परफेक्ट ऑफ ऑल रिमेन्ड अवे फ्रॉम द यूज ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग कम्युनिकेटेड फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड. अगर आप इस बात को देखेंगे, LM पोटेंसी का जो टाइमिंग का फेज है, हेनमिन ने अपना लास्ट 6th एडिशन ऑफ द ऑग्नोन, जिसके अंदर उन्होंने 50 मिलेसिमल पोटेंसीज के डिटेल्स को डाला, वो 1842 में उन्होंने कंप्लीट कर दिया. एंड उसके बाद उनकी डेथ हो गई और वो पब्लिश नहीं हो पाया. वो मैन्युस्क्रिप्ट ही रखा रह गया मैडम मेलिनी के पास. करते करते 1921 हो गया पब्लिश होते होते. बोरिक साहब ने पब्लिश करवाया. वो एक फेज था जब डॉक्टर जेटी केंट का एरा आया था. एंड डॉक्टर जेटी केंट के एरा में यू कैन अंडरस्टैंड के करीबन करीबन इतना होम्योपैथी को उन्होंने पॉपुलराइज किया इन अमेरिका एंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. हेनमिन ने भी बहुत किया, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल एवरी डे एंड एवरी होम वाज लाइक होम्योपैथी. तो वो बेनिफिट, वो यूसेज, वो विजडम, वो गुडनेस ऑफ LM potency, JT Kent never tasted, never knew about it. पता ही नहीं था उसके बारे में. तो अगर देखेंगे तो उसकी वजह से सेंटेसिमल स्केल के क्या नुकसान हुए, क्या परेशानियां आई, स्पेशली हाइपोटेंसी की, जिसकी वजह से हम लोग केंट 12 ऑब्जर्वेशंस पढ़ते हैं. केंट की 12 ऑब्जर्वेशंस के अंदर मामला क्या है? सिर्फ 3 ही है. वो 4 एग्रावेशन है, 3 एमिलोरेशन है और उसके बाद चेंजिंग ऑफ द सिम्टम्स है. तो 4 एग्रावेशंस की बातें करते हैं डॉक्टर जेटी केंट. मतलब कि पहली ऑब्जर्वेशन में तो वो बात है जो कि हमने पेशेंट को हार्म किया है. तो अगर वो LM पोटेंसी के विषय में जानते और ये रिवील हो जाता 6th एडिशन केंट साहब के सामने, तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें और इस तरह की चीजें नहीं होती. और बहुत सारी बातें हमारे को LM पोटेंसी से रिलेटेड उस टाइम के डॉक्टर्स के एक्सपीरियंसेस को जानने का हमको मौका मिलता है. छोटा सा ट्रैक हम करते हुए चलते हैं कि जस्ट बिफोर ये बात क्या, ये ट्रैक कैसे है कि हम हेनमिन की डोज की अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं. और वो
क्रूड डोजेस से शुरू होती है और एलिम पोटेंसी तक जाती है, बिफोर होम्योपैथी से शुरू होती है और होम्योपैथी के प्रिसाइज होने तक जाती है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो एक वर्क था हैनमिन का 1784 का, कि जहां पर he just told about the directions for cure of cold sores and ulcers, जहां पर he was giving the dose of 5 to 70 grains। और उसके बाद जब उसने ये सिमिलिबस कुरेंतुर का अंडरस्टैंडिंग कर लिया, और यहाँ कुछ ईयर गलत हो गया है यहाँ, तो एक ये हुफलैंड जर्नल के अंदर कहीं पे जो भी हमारे को बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते हैं, सम काइंड ऑफ कंटिन्यूड एंड रेमिटेंट फीवर, जहां पर वो इग्नेशिया देने को तो कह रहे हैं, मेडिसिन की सिलेक्शन तो सही है, बट देन यू सी 2 to 3 grains, कैम्फर 30 to 40 grains, लीडम 6 to 7 grains। एसओ न्यू प्रिंसिपल 1976, आप 1796 पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि he discussed 54 medicines in that and all in grains in doses। और वो उसके अंदर बता रहे हैं कि दवा खिलाने के बाद ये तो ठीक हुआ, लेकिन these were the side effects came। तो इसी तरह से उनका एक ट्रांसलेशन था जिसके अंदर उसका एक उन्होंने किया था, उसमें सिल्वर नाइट्रेट के बारे में उन्होंने सजेस्ट किया था कि उसके डोजेस उसको कम कर दो, डाइल्यूट कर दो, 2 ग्रेन देने की बात थी इन डाइल्यूटेड फॉर्म। इसी तरह से जब हम 1805 में आते हैं, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जो आर्टिकल, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैनमिन का था, जो आगे चल के एसओ ऑन न्यू प्रिंसिपल एंड मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस एक ज्वाइन करके ऑग्नोन का प्रिकर्सर बना। ऑग्नोन की पहले एडिशन को लाने के लिए ये 2 आर्टिकल सबसे ज्यादा हेल्पफुल हुए। यहां पर ही एडवाइज द यूज ऑफ incredibly small doses if large ones are given increasingly there arises merely medicinal symptoms or a kind of artificial disease। और फिर जब हम 1810 में आ गए तो हैनमिन ने अपना फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑग्नोन ऑफ रैशनल मेडिकल साइंसेस को उसने पब्लिश कर दिया। He was not much sure about the magnitude of small dose। Like यहाँ पे आप जब फर्स्ट एडिशन हैनमिन का देखेंगे तो he only said selection of the dose। He stated the true physician will prescribe his carefully selected homeopathic remedy only in so small a dose as is adequate to overcome and annihilate the disease present। तो उनको ये तो था कि कम देना है, but then exact measurements and exact dilution and all those things as we learn in centesimal and all, ऐसा वाला कुछ नहीं बन पाया था उस समय तक। आगे आगे चलते हैं तो एक ये वाला एक आर्टिकल, द spiritual power of medicine attains its purpose and not by quantity but by क्वालिटी। ये एक उन्होंने आर्टिकल लिखा था जिसमें वो मेडिसिन की क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, क्वालिटी की बात कर रहे। तो इसी तरह से जब हम आगे चलते हैं और सेकेंड एडिशन ऑफ ऑग्नोन को देखते हैं, उसके अफोरिज्म 247 को देखते हैं, तो हैनमिन रियलाइज दैट ascertaining the dilution degree for individual remedies should not be worked of theoretical assumptions but can only be determined by clear experimentation, केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्यूरेट एक्सपीरियंस। मैं आपको इसके बारे में एक बात बताता हूँ, कहना क्या जा रहा है ये वाला अफोरिज्म। जो लोग भी एलिम पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक कोलकाता एंड बंगाल, there people are very much tuned with homeopathy and the methods of homeopathy and elim potency extensively used there in a very well manner। तो वहां पेशेंट बड़ा ट्यून्ड है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एलिम, मोस्ट ऑफ दी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स दे आर विद centesimal और decimal और with this mother tinctures। अब जाके थोड़ा सा होने लगा है कि एलिम पोटेंसी यहाँ पे यूज होने लगी है, बट अर्लियर इट वाज नॉट। तो यहाँ पर एक बात होती थी, क्या डॉक्टर साहब इतना क्यों करना, एक चम्मच निकालो, एक कप पानी में मिलाओ, उसमें से ये पियो वो पियो, ड्रॉपर में दे दो, ड्रॉपर वाली बॉटल में दे दो, एक ड्रॉप ऐसे ही जबान पे डाल लेंगे। सो मैं उनको यही बात कहता था दैट
medicine is not your logical assumptions. It is only by experimentation. What is the experimentation? आपको इफेक्टिव डोज चाहिए. इफेक्टिव डोज किसको कहते हैं? इफेक्टिव डोज का मतलब होता है ऐसा क्वांटम ऑफ मेडिसिन और ऐसा पोटेंसी जो आपको आपकी बीमारी में आपके वाइटल फोर्स को ठीक तो करे बट हार्म नहीं करे. ये बात आपको एक्सपेरिमेंट से ही समझ में आएगी. एंड ये वाले एक्सपेरिमेंटेशन जब हुए तो एक ऐसा मेथड निकला जिसने कि हमारे को बहुत हेल्प किया. और कहां पे हैनमैन फंस गया था वो वाली बात पे हम लोग आएंगे अभी. तो सक्सीडिंग ईयर में जब हम जा रहे थे, Henneman experimented with varied degrees of dilution in centesimal scale. He concluded that the process of shaking and trituration resulted in uniform mixing dilution. वो सिर्फ weakening of medicinal substance नहीं करता था खाली, उसके साथ साथ उसकी डायनेमिक पावर भी, स्पिरिचुअल पावर भी एनहांस होती थी, जिसके ऊपर अब बहुत साइंटिफिक स्टडीज हो गई हैं और बहुत सारे उसके ऊपर बातें आ गई हैं. जैसे कि रमेश बेलारी का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने नैनो इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन होम्योपैथी के 200 पोटेंसीज और इन सब के बारे में बताया. इससे पहले भी बहुत सारे हुए लेकिन ये लेटेस्ट है जो मैंने आपके सामने बोला. इसी तरह से जब हैनमैन 1828 में अपनी क्रॉनिक डिजीज जिसमें उसने माइजम, उसका ट्रीटमेंट, उसका मैनेजमेंट, उस तरह की बीमारियों की पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट कैसे हमारे को जाननी चाहिए उसके बारे में भी, वहां पर भी उन्होंने डायनामाइजेशन की बातों को काफी एलोबरेट किया है. अब ये बात समझने की बहुत जरूरी है कि जब हम 1829 में आए तो फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गनोन आया. यहाँ जब फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गनोन आया तो यहाँ पे एक बड़ा सेट एंड बड़ा रिजिड कंसेप्ट ऑफ होम्योपैथिक पैथोलॉजी था. वो क्या था कि एक प्रॉपर सेंटेसिमल स्केल का 1:99 का एक रेशो मैथमेटिकल सिस्टम सेट इन हो गया था जो उन्होंने यहाँ पे लिखा. और यहाँ पे उन्होंने ये कह दिया कि भाई 30th पोटेंसी यूज करेंगे, इधर उधर लंबा चौड़ा मत जाओ, उसमें से भी उसका एक गोली यूज करेंगे, 1 पिलेट जबान के ऊपर डाल दो, और किसी भी तरह का आप रिपीटेशन नहीं करेंगे जब तक कि पेशेंट का जो ग्रेजुअल एक कांस्टेंट इंप्रूवमेंट चल रहा है, उसके इंप्रूवमेंट के अंदर जब तक एक हॉल्ट नहीं आएगा, जब तक वो स्टॉप नहीं हो जाएगा, तब तक आप कुछ नहीं सोचेंगे रिपीटेशन के बारे में. जस्ट वेट एंड वॉच. इतनी रिजिड पॉलिसी थी उस समय पे. बट एज आई टोल्ड यू, Henneman was a never resting soul, and this noble soul, he was working and working, and he was getting now so many patients everywhere. पूरे वर्ल्ड से उनके पास पेशेंट्स आते थे. और आजकल तो हम ऑनलाइन देखते हैं, बट हैनमैन उस जमाने में हैंड रिटन लेटर्स के ऊपर अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किया करते थे, मेडिसिन भेजा करते थे. दैट वाज वेरी ओल्ड एंड वेरी डिफिकल्ट टाइम दोस डेज. तो वो सारी की सारी सिचुएशन के अंदर जब उन्होंने देखा अपने केसेस के ऊपर, तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये रिजिडिटी से ठीक नहीं है. ये रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथिक पैथोलॉजी. और अगर आप 5th एडिशन 1833 aphorism 246, mind it, 5th edition 246 aphorism, footnote, पहली लाइन. In the former editions of the Ognon, I recommended only this rigid method of treatment जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, बट इससे बात बनेगी नहीं. And he has given the conditions. कौन सी कंडीशन के अंदर यहां पर आपको इस रिजिडिटी के साथ नहीं रहना है. इसका मतलब क्या है कि उसने इस रिजिडिटी का भी एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, और कहां इस रिजिडिटी के साथ नहीं रहना है उसका भी क्राइटेरिया सेट कर दिया. उसने इसको कंप्लीटली फॉरगो कर दिया और बस अब रिपीटेशन करे जाओ. हैनमैन नेवर मेंट दैट. ही वांटेड टू से these are the conditions जहां पे आपने रिजिड रहना. these are the conditions जहां पर आपको मॉडिफिकेशन करना है पैथोलॉजी के अंदर. एंड
वो मॉडिफिकेशन में क्या होगा कि कितना एक जुडिशियस रिपीटेशन आप दवा का कर सकते हैं, उस बारे में मेरे ख्याल से ऑर्गेनॉन में अगर कोई सबसे लंबा 3 पेजेस का फुटनोट अगर कोई है तो 246 अफोरिज्म का फुटनोट है। उसको जनरली नहीं पढ़ा जाता, जनरली नहीं पढ़ाया जाता, बट आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ माय फेलो डॉक्टर्स हियर कि आप लोग थोड़ा हिम्मत करके उसको पढ़ो। आपको उसमें से ऐसे ऐसे पर्ल्स मिलेंगे और ऐसे ऐसे उसमें से आपको हीरे जवाहरात मिलेंगे कि आपकी क्लिनिक में एक अलग ही रिस्पॉन्स पेशेंट्स का देखने को मिलेगा। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। तो अब इसी तरीके से जब हम देखते हैं तो 287 फुटनोट में जब हम जाते हैं तो वहां पर ड्रग व्हीकल जो मैंने कहा 1:99 का वो वाला रेशियो फिक्स हो गया था, और इस तरह की कितने सबकशंस देने हैं, जो कि उसका एक रेंज फिक्स हो गया था। 2 to 10 रेंज फिक्स हुआ था, 10 ही नहीं था, एक रेंज था 2 to 10। इस तरह से करके ये सब बातें फिक्स हो गई थी। मतलब कि कहीं ना कहीं हैनमैन का जो एक व्यू था कि हैनमैन होम्योपैथी को बड़ा मैथमेटिकल सर्टेनिटी तक लाना चाहते थे, तो उन्होंने ये काम पोसोलॉजी के मामले में तो बहुत अच्छे से किया है। और उन्होंने एक बार ये भी रख दिया कि भाई जो भी एक गोली देना है ना, वो ऐसे ही खाली ट्राई डोज मत दो, थोड़ा सी पानी में मिला के सारा पिला दो अनडिवाइडेड फॉर्म के अंदर। और उसके बाद वेट एंड वॉच करो, और फिर उसके बाद पे वो जैसे मैंने बताया कि 246 फुटनोट की बात आई तो सूटेबल इंटरवल्स के अंदर रिपीटेशन डिसाइड करो, ऐसे करके बात चलती चली जा रही थी ना। अब बात आती है इस 1837 की। आप देखिए, याद करिए 1837 मतलब हैनिमैन कहाँ थे। नाउ ही इज ए वर्ल्ड फेम doctor, magical doctor, miraculous doctor, because he was treating and curing such conditions जो कोई सोच नहीं सकता था उस जमाने के अंदर ठीक करने के लिए। और he was practicing in the Paris। आप जानते हैं पेरिस क्या है? पेरिस को अगर हम नरेट करें आज भी और उस जमाने में भी, एक बहुत रोमांटिक सिटी है, और यही जगह है जहां पे सबसे पहले कोलंबस और उसका क्रू आया था 1489 कौन से टाइम में, जबकि यहां पर सिफिलिस का आउटब्रेक हुआ था। और इस तरह की डिजीज के फैलने से जब बात हैनमैन के टाइम तक आई, 1837 तक आई, उस जमाने तक क्या हो गया था कि एसटीडीज इतना ज्यादा फैला था यूरोप के इलाके में कि अब वहां पर लोग दो तरीके से बीमार थे। वन, बिकॉज ऑफ द एसटीडी, सेकेंड बिकॉज ऑफ द फेलिंग full of side effects of the drugs which treated STDs। इतना खराब तरीके का इलाज था। लाइक जैसे कि आज अगर हम कंपेयर करें तो आप सभी के क्लिनिक के अंदर टीबी के एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट से लेने के बाद भी पेशेंट्स आते हैं जिनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। टीबी नहीं है क्लिनिकली देखने में उसको, बट देन और बहुत कुछ है उसको। कैंसर के केसेस आते हैं जिसके अंदर कीमोथेरेपी और व्हाट नॉट, आप सब जानते हैं। इस टाइप का ट्रीटमेंट वहां पर जब दिया जाता है, उसके बाद पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होती है, वी ऑल कैन अंडरस्टैंड। ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम लोग अपने क्लिनिक में कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या हम लोगों की पोजीशन और थिंकिंग होती है। हैनमैन की सिमिलर थिंकिंग इस टाइम में थी जब एक पेशेंट वहां पर उनके पास एसटीडी का आया है विथ फुल ऑफ मर्कुरियल साइड इफेक्ट्स, मरकरी और बहुत सारे प्रिपरेशंस ऑफ द मरकरी एंड बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो बहुत ही पॉइजनस थी, जो कि डिफरेंट एसटीडीज के लिए यूज होती थी, और पेशेंट वहां पे ड्रॉप इन करता था इस हालत के अंदर कि हैनमैन उसको देखे समझे कैसे, ऐसी कंडीशन के अंदर आता था। तो ऐसी कंडीशन में जब वो आया
वहां देखने में क्या मिला हेनमिन को कि he has taken down the case very well. He has pointed out properly what are the symptoms of the patient and what are the symptoms of the drugs and everything, and what is the totality criteria, and he prescribed the medicine. अब क्या हुआ कि पेशेंट के साथ में क्या था कि उसकी अपनी इंडिविजुअल सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा थी अलोंग विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द पैथोलॉजी. जनरली क्या होता है जब पैथोलॉजीज बढ़ जाती हैं बहुत ज्यादा, तो एक पेशेंट क्या हो जाता है कि वो बहुत उसकी सेंसिटिविटी भी रिड्यूस हो जाती है. बट यहाँ पेशेंट कैसा मिला, यहाँ पेशेंट उसको ऐसे मिले, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट ऐसा मिला, एक अच्छा खासा ग्रुप ऑफ पेशेंट ऐसा मिला जो सेंसिटिव भी बहुत था और उसके साथ साथ उसको पैथोलॉजी बहुत एडवांस हो गई थी, जो पैथोलॉजी डिजीज की थी, एसटीडीज की थी, प्लस अच्छे खासे पैथोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स थे मर्करी और डिफरेंट प्रिपरेशन थे मर्करी के. यहां जब हेनमन ने सेंटेसिमल स्केल की पोटेंसीज को दिया तो हेनमन को यहां पे एक्सट्रीम एग्रेवेशंस मिली, पेशेंट्स बहुत परेशानी में आ गए और हेनमन भी बड़ी ट्रबल में आ गया कि मैं इस तरह के लोगों को कैसे ठीक करूं. दैट वाज हिज प्रॉब्लम. अब बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे अपने कोलीग्स को ऐसे सुना बोलते हुए बहुत सारे वेबिनार्स में और जगहों में कि पोटेंसी एंड पोसोलॉजी बहुत मैटर नहीं करती है सो लॉन्ग एज योर प्रिस्क्रिप्शन इज करेक्ट. आपकी दवा की सिलेक्शन अगर सही है तो पोसोलॉजी पोटेंसी ये वो कुछ ज्यादा मैटर नहीं करती है. मेरी लर्निंग के मुताबिक हेनमन को पढ़ने के बाद और अपने क्लिनिक के अंदर पेशेंट्स देखने के बाद मेरे को लर्निंग ये हुई कि नहीं भाई, ऐसा सच नहीं है बिल्कुल भी. जितनी ज्यादा सीरियसली आप सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन करनी है उतनी ही सीरियसली आपको पोसोलॉजी भी ईच केस पे डिसाइड करनी पड़ेगी. आपको बड़ा प्रॉपर क्राइटेरिया पता होना चाहिए, यहां सेंटेसिमल देना चाहिए, यहां पर हमको एलिन पोटेंसी में देना चाहिए, यहां पे हमको मदर टिंचर देना चाहिए, यहां पर हमारे को डेसिमल स्केल देना चाहिए. डेसिमल स्केल हम सब जानते हैं हेरिंग ने दिया था, हेनमन ने नहीं दिया था, बट वो भी एक स्केल है जिसकी अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है. तो बी केयरफुल के जो भी पोसोलॉजी की बात है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम कई बार क्या 50 मिलीसिमल के बारे में ऐसा समझ लेते हैं यार कन्वीनियंस है, पेशेंट को बता दो, लेते रहो सुबह शाम. नहीं, ये आइडिया नहीं है बिल्कुल भी. 50 मिलीसिमल बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आगे आपके पास लेने वाला हूं कि जब भी आप उन केसेस में जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया वहां पर जब उन्होंने हेनमन ने मान लीजिए 6 दिया या 30 दिया या 24 दिया, वो उस समय में वहां पर बहुत सारी और पोटेंसीज हेनमन यूज किया करते थे. 9, 12, 18, 24 इस तरह से करके 60 ऐसे करके यूज किया करते थे, जो कि अब बड़ा स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, हम लोग नहीं जानते ना करते हैं. बट देन उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी वहां पे उस जमाने में. तो वहां पे उन्होंने पहली कोशिश की 10 शेकिंग नहीं करते, 10 सक्शन नहीं करते हैं, 2 करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसके कारण आ रहा हो. हेनमन इस तरीके से करके बहुत सारे तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहे कि क्या हम यहाँ कर सकते हैं इसके अंदर, कि क्यों पेशेंट वीक भी है, पेशेंट सेंसिटिव भी है और उसको एक मायोस्पेटिक डिजीज है, मतलब कि उसको एसटीडी है, ऐसी कंडीशन थी और उसका कॉन्स्टिट्यूशन एक पेक्यूलियर किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हो गया था. तो एलएम पोटेंसी इस तरह के वीक, सेंसिटिव और क्रॉनिक मायोस्पेटिक डिजीज की कंडीशंस के पैकेज के अंदर यूज किया जाता है टू गेट द सक्सेस. और जो भी आपको कैंसर और किडनी फेलियर और ये जो आजकल बहुत होने लगा है, ये ऐसा ही कुछ पैकेज आपको मिलता है सामने. तो अब ये रिवील कैसे हुआ 50 मिलीसिमल की बात. ऑलमोस्ट हेनमन वाज मूविंग टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ हिज लाइफ. तो पेरिस में जब हेनमन प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक रेवरेंड एवरेस्ट करके एक पर्सन थे जो उनको असिस्ट करते थे, स्पेशली शुगर ग्लोब्यूल्स बना के देते थे उनके केसेस में. तो उन्होंने डॉक्टर लूथर को एक लेटर लिखा कि हेनमन आजकल एक नया तरीका यूज कर रहे हैं कि
3C की जो डाइल्यूशन है एक दवा की, जो भी इंडिकेटेड दवा है से इग्नेशिया, 3C का करके वो कुछ तरीका ऐसा करते हैं और उसके ऊपर 01 लिख देते हैं। हम जानते हैं कैसे बनाया जाता है, मैं उसकी मैथमेटिक्स में और उसकी फार्मेसी में नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने सबसे पहले कैसे हेनमिन 01 बनाता है और कैसे वो देता है, ये वाला इन्होंने रेवरेंड एवरेस्ट ने डॉक्टर लूथर को लिखा। और ये सारा सिलसिला हेनमिन ने 6th एडिशन के अंदर, एक आदत थी हेनमिन की जो मैंने ऑब्जर्व की उनकी राइटिंग्स को पढ़ के, कि उन्होंने यहाँ वहां जो भी लिखा, आर्टिकल लिखा, कहीं पब्लिश किया, जो भी है, वी कॉल इट लेसर राइटिंग्स ऑफ हेनमिन, बट जो उसके मेजर राइटिंग्स है, उसकी जो मैग्नम ओपस है, लाइक ऑग्नोन ऑफ मेडिसिन, लाइक मैथमेटिका प्यूरा, लाइक क्रॉनिक डिजीजेस, उन सब में हेनमिन ने अगर कोई एडिशन करना था अगर, तो उनका एक बहुत एक्सपेरिमेंट, उसका वेरिफिकेशन, कंफर्मेशन, उसके बाद वो कोई चीज ऑग्नो में डाला करते थे। जैसे एग्जांपल की बात है, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है माइज्म हमारे यहाँ। फर्स्ट 2 years 1816 एंड 1818 के तक में उन्होंने पायलट स्टडी किया एंड ही लर्नड अबाउट इट, बट उन्होंने ऑग्नोन में नहीं डाला। नेक्स्ट 10 years उन्होंने इसके ऊपर एक्सटेंसिव स्टडी किया और क्रॉनिक डिजीज छाप दिया, तब तक भी माइज्म नहीं डाला, 5th एडिशन के अंदर डाला। उसके बाद भी इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ इसके बारे में, जो आज तक हम लोग परेशान है उस चीज को लेकर के। एक ही रीजन है कि हम हेनिमन को अलावा, हेनिमन की राइटिंग्स को छोड़ के अलावा बहुत कुछ पढ़ते हैं और बहुत अपने अंदर से एक मकड़ी के जैसे बहुत कुछ निकाल देते हैं माइज्म के बारे में और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। आई थिंक हेनिमन की राइटिंग बहुत प्रिसाइज है, अगर हम समझे तो बड़ा आसान है हमारे लिए उसे करना। तो अब ऐसे सर्कमस्टांसेस में यहाँ पर हमारे सामने एक तरह से विलियम बोरिक हुए जिन्होंने कि इसको निकाला। लेकिन आप सोच के देखिए 1921 तक भी क्या था कि उसका इंग्लिश वर्जन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन 50 मिलीसिमल के बारे में कुछ नहीं पता लगा। इसके बाद में करीबन करीबन ऐसे मानिए कि 1954 हो गया और 1950s हो गया, थोड़ा सा और पहले कह लें हम, एक डॉक्टर चार्ल्स पाहोड हुए जिन्होंने पहली बार एक आर्टिकल लिखा, एक्सपीरियंस विद हैनिमन्स 50,000 डाइल्यूशन, जो कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ होम्योपैथी में अप्रैल 1950 के अंदर पब्लिश हुआ। ये थे कि इस 20th सेंचुरी में सबसे पहले जिन्होंने हैनिमन के 6th एडिशन के इतने फिजियोलॉजी के एलिम्पोटेंसी के एस्पेक्ट को उस जमाने के डॉक्टर्स को बताया। और उसके बाद वी नो पेयर स्मिथ, हम लोग सब जानते हैं कि उन्होंने एक बुक लिखी, द हिडन ट्रेजर ऑफ ऑग्नोन, द ऑग्नोन एंड इट्स हिडन ट्रेजर। कौन सा? 6th एडिशन के बारे में। 1954 में ये एक आर्टिकल था जो ब्रिटिश जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ था, जहां से हम लोग 50 मिलीसिमल के बारे में जानने लगे और उस पोटेंसी के बारे में हम लोगों को पता लगा। लेकिन देखने में आया कि वो एक ऐसा एरा था और उसमें हम लोग, उससे पहले जो केंट का एरा गुजरा था, उससे हम इतने इन्फ्लुएंस थे कि हम, अगर मैं लाइटर नोट पे बोलूं तो हम शाहरुख खान के आगे दिलीप कुमार जी को भूल गए, ऐसे वाला हो गया। तो ये सारा का सारा जो पूरा का पूरा सिस्टम हैनिमन ने डेवलप किया था, 1801 से 1842 तक उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन को पब्लिश, एक्सपेरिमेंट करके, प्रूविंग करके पब्लिश किया। इट वाज 100 इन नंबर। आप सोच के देखिए कि मैथमेटिका प्यूरा एंड क्रॉनिक डिजीज में टोटल मिला के 99 मिलता है, 100 कौन सा था? सोराइनम। बट हैनिमन ने जो भी उसका गिवन क्राइटेरिया था उसको ना तो क्रॉनिक डिजीज में डाला और ना ही उसको उन्होंने मैथमेटिका प्यूरा में डाला, वो उसके आर्काइव के अंदर ही रह गया। जो भी कोई हैनिमन का क्राइटेरिया था, जो कि मैं अभी तक जान नहीं पाया हूँ, आई थिंक आई एम द स्टूडेंट टू लर्न ऑल दिस। तो
ये सारा का सारा सिलसिला ऐसे ही चलता चला गया। और हमें थोड़ा सा जानना चाहिए कि जब हम इसको एलएम पोटेंसी का मतलब क्या होता है और क्यू पोटेंसीज का मतलब क्या होता है, वी शुड एग्जैक्टली नो द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। क्योंकि कहीं भी कोई भी लर्न पर्सन, कोई डॉक्टर, कोई भी पर्सन हमसे पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय एलएम। सो एलएम इज, एल इज ए रोमन नंबर, रोमन न्यूमेरिकल है 50 के लिए, और एम जो है वो रोमन न्यूमेरिकल है 1000 के लिए, इसलिए 50,000। एंड क्यू क्या है, ये लैटिन लैंग्वेज के अंदर से आया है, क्यूसी जेसिमस, जो भी इसका एक सही प्रोनाउंसिएशन होता है, आई शुड लर्न दिस। और इसीलिए यहाँ पर ये लैटिन भाषा में और रोमन भाषा के जो रोमन नंबर्स है उसके हिसाब से ये बताते हुए कि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसके ऊपर आपने इस डोज को देना है। और ये वो कैलकुलेशन है जो एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंस के बाद निकला है, किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से नहीं निकला है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने की। और उसको लिखने का तरीका 0/1, 0/2, या कुछ लोग इसको उल्टा भी कर लेते हैं, या कुछ लोग इसको Q1 Q2 ऐसा भी करके लिखते हैं। और ये वो लोग हैं, ये वो पर्सनैलिटीज हैं जिनको हमें बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ना चाहिए रिगार्डिंग दी एलएम पोटेंसी। फर्स्ट नेम आई टोल्ड यू, जिन्होंने सबसे पहले बताया था। देन वेरी इंप्रेसिव बुक इन सर्च ऑफ लेटर हैनमिन, जो डॉक्टर रीमा हेडले की थी। एंड इसी तरह से गैब्राइल और पियर स्मिथ एंड चार्ल्स पाहोड, डेविड लिटिल, इन्होंने बहुत काम किया। डेविड लिटिल को अगर आप पढ़ेंगे तो डेविड लिटिल तो 50 मिलीसिमल की पोटेंसी को इस तरह से यूज करते थे कि वो एक डोज देते थे सबसे पहले, एंड यूज टू से कि हम इसे टेस्ट डोज देंगे, एंड टेस्ट डोज देकर के हम देखेंगे कि कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं आ रहा। और इसका एक और भी, आई विल कम टू दैट। और उसके बाद ही वो देखते थे कि किस तरह का रिपीटिशन देना है। मैं इस कंसेप्ट को डेविड लिटिल के कहाँ यूज करता हूं, देयर आर सर्टेन केसेस जो मैंने डॉक्टर एलएम खान सर से सीखा कि कार्सिनोसिन कैसे देते हैं। बट एक चीज जो बड़ी डिफिकल्ट है कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे, क्राइटेरिया होगा, जहां मैं कार्सिनोसिन कैंसर के केस में यूज कर सकता हूं। फर्स्ट लॉ इज, द फर्स्ट रूल इज कि ट्यूबरकुलिनम टीबी में नहीं देना है, कार्सिनोसिन कैंसर में नहीं देना है। ये फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस मिलती हैं तो दे सकते हैं। बट इतना कॉन्फिडेंस आपकी जो एलिसिटेड जो इंडिकेशंस हैं गिवन केस में, वो उसके लिए कंफर्म होने का तरीका यही है कि मैं डेविड लिटिल का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं ऐसे केस में कि जहां मेरे को बहुत कम केसेस में, जहां पर मुझे ये लगता है कि यहाँ तो मेरे को सिर्फ कार्सिनोसिन की इंडिकेशंस मिल रही हैं और केस कैंसर का है, तो वहां मैं डेविड लिटिल का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं कि एक डोज पेशेंट को देके बोलता हूं 24 आवर्स के बाद बात करेंगे क्या चेंज हो। और अगर मान लीजिए कि उसके बाद जो भी कुछ होता है अकॉर्डिंगली मैं फिर उसके अंदर जाता हूं। इसी तरह से पीटर मॉरल है, डेंकर है, टेलर है, आरपी पटेल है, हरिमोहन चौधरी है, ये सब लोगों ने एलएम पोटेंसी पे बहुत काम किया। और इन लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, जैसे मैंने डेविड लिटिल के बारे में आपको बताया। और इन लोगों ने अल्टीमेटली ये प्रूव किया कि एलएम पोटेंसी इज ए ग्रेट वेपन इन द आर्सेनल ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन। ये मेरे क्लिनिक का एक ऐसा वेपन है, ब्रह्मास्त्र है, जिसको कि मैं जब यूज करता हूं और जिस तरह के रिजल्ट होते हैं, तो आई ऑलवेज थैंक टू द नोबल सोल ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनमिन और जो भी उसके बाद के लोग हैं। एंड आई लर्न मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम माय फादर डॉक्टर एमएल अग्रवाल एंड डॉक्टर एलएम खान सर। तो उन लोगों के इस तरह के रिजल्ट सामने उन्होंने बैठा करके क्लिनिक में दिखाए, तो वो एक बहुत अच्छी लर्निंग बन गई। तो ये जो हैनमिन का बड़ा इनोवेटिव तरीका था, और 50 मिलीसिमल का इनोवेटिव इन्होंने जो एक स्केल निकाल के रखा, it is going to prove his ideal of
aphorism 2, rapid, gentle and perfect। ये बहुत बड़ी एक बून है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, जो बिल्कुल थक हार चुके हैं, एकदम साइंग सफरिंग ह्यूमैनिटी है। बहुत बड़ा परफेक्ट सिस्टम है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं एलएम और सेंटेसिबल फ्रिक्वेंसी के बारे में, कि इनको अगर हम अंडरस्टैंड करें तो ये बहुत सारा पढ़ने की बात अपनी जगह पे है, बट सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि जिन केसेस में आपको पोटेंसी के सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अफोरिज्म कौन सा है, 270 में क्या मिलता है, वो एक ही बात मिलती है कि पेशेंट की सेंसिटिविटी को जज करना है। पेशेंट की सेंसिटिविटी कैसे जज होती है, आप उससे केस चेकिंग करते हुए बहुत सारे सवाल पूछते हैं ना, अगर वो सवाल समझ ही नहीं रहा है, वेग आंसर कर रहा है और बड़ा अनसर्टेन है, आपको लग रहा है कैसी डल बातें कर रहा है, फिजिशियन समटाइम गेट इरिटेटेड। यार तेरे को पूछ रहे हैं खाने में क्या अच्छा लगता है, वो बोलता है मैं सब खाता हूँ। मैं अच्छा लग रहा है पूछ रहा हूँ, वो कहता है मैं सब खाता हूँ। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमको ये समझ में आ जाता है कि उसको मेरा सवाल समझ में नहीं आया, सेंसिटिविटी खराब हो गई। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, कैंसर के केसेस को देखो आप सवाल पूछोगे क्या आप पसंद करते हो खाने में, और वो इतना प्रिसाइज उसका आंसर होता है मीठा। एकदम प्रिसाइज जब आंसर होते हैं तो वो कुछ शब्दों में ही होते हैं, 1 2 3 शब्दों में बस। तो आप पेशेंट आया है और बीमार है बहुत, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा तरीके से हेयर कॉम्ब करके, बड़े अच्छे से कपड़े पहन के, बड़े तरीके से आके, बड़े तरीके से आप पास आकर के मिल रहा है, आपसे पूछ के बैठ रहा है, आपको नमस्कार कर रहा है, ये सब बातें क्या है, उसकी सेंसिटिविटी को इंडिकेट करते हैं। ये सब ऑब्जर्वेशंस करने की जरूरत है, जहां पर हमें अपने पेशेंट को देखनी पड़ती है टू जज द सेंसिटिविटी ऑफ द पेशेंट। तो जहां आपको ऐसे केसेस जिसमें एडवांस पैथोलॉजी है विद द एडवांस सेंसिटिविटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है टू यूज द एलएम पोटेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारी बातें कहने की बजाय ये एक बात याद रखने की है आपको, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मदद करेगी कि आप एलएम पोटेंसी के सिलेक्शन में जाएं। जब हम सेंसिटिविटी की जजमेंट की बात करते हैं और हम स्टोर्ड क्लोज पे जाते हैं, तो वो हमें बता देते हैं पेशेंट का स्टेट कैसा है, ससेप्टिबिलिटी कैसी है, लेवल ऑफ पैथोलॉजी कैसा है, रिएक्शन कैसा है, उसका स्ट्रेंथ कैसा है। ये बहुत सारी बातों में उन्होंने उसको समझाया, जो मैंने बहुत नटशेल में, बहुत थोड़ी सी सिंपल बातों के अंदर आपको बताने की बात मैंने की है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब हम 50 मिलीसिबल की बात करते हैं और हम बस ये समझते हैं कि 50 मिलीसिबल देने का मतलब है कि उसको दिन में 3 बार, 2 बार, 1 बार, रोज रोज करके हफ्ता 2 हफ्ता खिलाना ही है ना, ऐसा नहीं कहा हैनीमैन ने। हैनीमैन ने कभी भी अप टू 4th एडिशन सिंगल डोज के कंसेप्ट को कभी भी उसने खत्म नहीं किया। अगर आप अफोरिज्म 246 का जो 6th एडिशन में लिखा है उसको अगर उसकी पहली लाइन पढ़ेंगे तो बड़ी क्लियर एक बात कहते हैं, जिन केसेस में पहली डोज देने के बाद, चाहे वो एलएम पोटेंसी की है, बहुत स्ट्राइकिंग प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट है। 2 वर्ड है, स्ट्राइकिंग और प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट है। यहां एलएमबी रिपीट नहीं करना है, सिंपल बात है। एग्जांपल बताते हैं, याद रखिए स्ट्राइकिंग एंड प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट, और दूसरा क्या होता है, स्लो इंप्रूवमेंट। तो स्ट्राइकिंग और प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट कैसा होता है कि आपने पेशेंट को 1 डोज दिया और उसको 24 घंटे के बाद बुलाया और वो आकर के आपने देखा यार इसका तो चेहरा ही बदल गया, इतना प्लेजेंट फेस हो गया, इतना ग्रेसफुल हो गया, इतना, वो कहता है कुछ नहीं सर मैं तो अपने ऑफिस जाने लगा हूँ और मैं बिल्कुल बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और बिल्कुल आपने बुलाया था तो मैं आ गया। प्रोग्रेसिव स्ट्राइकिंग, 2 घंटे में मेरे को बुखार उतर गया, 3 घंटे में मेरे को भूख लगने लगी, तीसरे दिन तो मैं उठ के चलने लगा और मेरी सब सूजन चली गई एंड व्हाट नॉट। प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट का मतलब सिम्टम्स एक के बाद एक करके जा रहे हैं और इतने फास्ट तरीके से वो हो रहा है कि उसका इंप्रूवमेंट
आपकी आंखों में घुस जा रहा है, आपकी सेंसेस में घुस जा रहा है, उसको स्ट्राइकिंग कहते हैं। ऐसा इम्प्रूवमेंट जो आपकी सेंसेस को, उसके घर परिवार, कोई काम करने वाला, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त सब देख कर, यार क्या बात है यार, कहाँ से इलाज कराया, ऐसा क्या जादू कर दिया यार। स्ट्राइकिंग इम्प्रूवमेंट। जहां ऐसा हो वहां LMB रिपीट नहीं करना। लेकिन पेशेंट को दवा दिया, वो आया, हाँ जी डॉक्टर साहब ले लिया एक डोज, कुछ तो मन अच्छा लग रहा है, बात बाकी भूख भी नहीं पड़ी, नींद भी ठीक से नहीं आ रही, रेस्टलेसनेस भी वैसे ही है, स्वेलिंग भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही, वो भी वैसे ही, सब कुछ वैसे ही। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, बहुत एक एक करके सिम्टम धीरे धीरे कहीं कहीं कुछ हो रहा है, और 2-4-5 दिन के बाद में वही कमी रुक गया। दैट इज ए स्लो इंप्रूवमेंट, नीड्स रिपीटिशन। वहां पर हमने ये वाली रिपीटिशन की बात करनी है। डिसाइड करना पड़ेगा पेशेंट टू पेशेंट से, टेलर मेड सिस्टम के कितना रिपीटिशन करना है, कितना क्वांटिटी देना है, कितना हमने उसको एक बार में दवा पिलाना है। बहुत सारे इसके अंदर तरीके हो सकते हैं, हम LM पोटेंसी में कर सकते हैं, जो कि ये सारा मैंने आपको अभी बता दिया। कि होता क्या है कि जब हम सेंटेसिमल दवा देते हैं तो आप वो याद करिए, प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन। तो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन के अंदर तो जो होता है वो तो वाइटल फोर्स करता है, बट प्राइमरी एक्शन के अंदर मेडिसिन क्या करती है कि नेचुरल डिजीज को हटा देती है, और मेडिसिन का प्राइमरी एक्शन वहां पे बैठता है। वो जो पुशिंग है और कंपेलिंग है उस नेचुरल डिजीज को भगा देने के लिए, वो सेंटेसिमल में एग्रावेशन क्रिएट करता है। और वहीं पे सारी की सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है, और जिसकी वजह से हनीमैन को इतनी सारी एक एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ी। तो ये सारा का सारा जब उन्होंने काम किया और इस तरह की पोटेंसी को निकाला, तो हम उसने एक तरीका निकाल दिया हनीमैन ने यहाँ पर, कि इस कंपल्सिव एग्रावेशन को, जो कि ऐसा कई बार कहा जाता है, और हनीमैन ने भी ऐसी जगह क्रोनिक डिजीज में लिखा है इंसिपिएंट क्योर, यानी कि जहां पर थोड़ा सा इनिशियल एग्रावेशन हो तो वो बहुत अच्छा है, वो उससे ये पता लगता है कि पेशेंट ठीक होने की तरफ चल पड़ा है। बट देन 50 मिलीसिमल पोटेंसी इज वन सच पोटेंसी जिसमें ऐसा कंपल्सिव एग्रावेशन के जो क्राइसिस है वो कंप्लीटली मिटिगेट हो गए, उसकी कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसके बिल्कुल भी। तो ये जो बातें हैं और देने का तरीका है, और उसको हमने कैसे यूज करना है और कैसे बनाना है, ये मुझे लगता है कि आप लोग सब यूज करते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन अगर कभी होगा तो इसको बैठ के और डिटेल में हम लोग जब डिस्कस करेंगे तभी हम लोग बात कर पाएंगे इसके बारे में। आज का पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये था कि आप लोग को ये बात बताना कि LM पोटेंसी एक ऐसी पोटेंसी है जिसके बारे में हमको ये कंसिडर करना चाहिए, अगर हम प्रैक्टिस में अगर उसको यूज नहीं करते हैं, कि ये मस्ट है आज के टाइम की क्लिनिकल प्रैक्टिस में, होम्योपैथी के क्लिनिक में 50 मिलीसिमल होना ही चाहिए। ये एक बहुत जरूरी बात है। Sir, तो sorry, ये sir. ध्यान में रख, Your video and your slide is not shared, sir. Now your video is there. Can you share the slide again? अच्छा एक मिनट, ये अचानक से बीच में रुक गया था क्या स्लाइड हाँ जी शो? सर, अभी इंटरप्ट हो गया एकदम से। Share on. कि हम बात करते रहते हैं जब तक ये टेक्निकली ठीक होगा। तो मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? एवरीवन कैन लिसन मी? हाँ जी, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। तो हमारे को ये बात सबसे ज्यादा, हम LM पोटेंसी को सबसे पहले अपने यहाँ अपने क्लिनिक के अंदर एक्सटेंसिवली यूज करें। बाकी इसके जो लॉजिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम लोग को डिफिकल्टी होती है, मैंने ये देखा। अभी मेरी आ रही है आपको हाँ जी डॉक्टर सर, अमिता? कैन हाँ जी, यू हाँ जी सर, अभी मेरे प्रेजेंटेशन देख पा रहे? हाँ जी दिख रही है सर, हाँ जी।
तो ये जो बात है सबसे बड़ी, ने कहीं ना कहीं इस लॉजिस्टिक्स से बचने के लिए कि यार इम्पोर्टेंसी के लिए कहीं से कहीं से दबाओ, बनाना उसका झेला है, एक गोली निकालो, उसको उसमें मिलाना है, उसके अंदर आरएस डालना है, ऐसा करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग के सामने आती है जिसको लेकर के हम लॉजिस्टिक्स की वजह से भी कई बार अवॉइड कर देते हैं इसको यूज करना। मुझे ऐसा लगा, जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैंने देखा एल पोटेंसी को अवॉइड करने का, कि पेशेंट इसको नहीं यूज करना चाहता। तो मेरे से भी लोग कहते हैं सर ये बहुत मुश्किल है दवा लेने के लिए, तो मैं उनसे दो बातें कहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दवा लेने आए हैं, मिठाई लेने नहीं आए। मिठाई तो शौक से खाई जाती है ना। आप क्लिनिक में आए हैं, कैफेटेरिया में नहीं आए। दूसरी बात ये है कि हम दवा कैसे कैरी करेंगे। तो आई सेड यार, आप अपना हेडेक, अपना कैंसर, अपना ट्यूमर कैरी करके यहाँ से कहीं पे भी जाते हो, बीमारी कैरी करोगे, दवा नहीं कैरी करोगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बातें जब पेशेंट की आती हैं और वो समझता है और उसको जब इम्प्रूवमेंट आता है, पेशेंट को बड़ा करेज हो जाता है डॉक्टर के साथ साथ कि हाँ, हमको ये सब चीजों में जाना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। आई एम जस्ट कीपिंग सर्टेन स्लाइड्स जो कि मैं बात कर ही चुका हूँ आपसे, और उसकी एकदम से यहाँ पर दोबारा से रीड आउट करने की नीड नहीं है। तो आप देखेंगे कि एक पॉइंट आता है कि एल पोटेंसी हाई पोटेंसी है कि लो पोटेंसी है। अब आप खुद डिसाइड करिएगा, मैं आपको बताता हूँ कहां से 01 बना। 01 बना 3C से। तो अब आप समझ सकते हो कि एल पोटेंसी एक ऐसी पोटेंसी है जो पोटेंसी वाइज तो उसके अंदर वो लो पोटेंसी हो गया, बट उसका जो इफेक्टिवनेस है वो ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपको बड़ा ही हाई पोटेंसी जैसा रिस्पॉन्स शो करता है। तो ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग से पेक्यूलियर पोटेंसी है जिसको हम हाई पोटेंसी और लो पोटेंसी नहीं कह सकते हैं, बट एक ऐसी पोटेंसी कह सकते हैं जो आज के पेशेंट्स के अंदर जो इतनी दवाइयां खा के आपके पास आ रहा है और वो इतना सेंसिटिव है, बहुत एप्ट पोटेंसी है जो कि रिक्वायर्ड है हम सभी लोगों को अपने क्लिनिक्स के अंदर। मस्ट है ये मेरे हिसाब से। ये बातें मैं ये वाली कर चुका हूँ, एंड फाइनली टाइम भी हो गया और मुझको कंक्लूड भी करना चाहिए कि मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एल इम्पोटेंसी की जब हम बात करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि अगर हम अपने गिवन केसेस में बहुत ही अनप्रोडक्टिव एग्रेवेशन से बचना चाहते हैं, स्पेशली वीक एंड वेरी सेंसिटिव पेशेंट्स के अंदर जिनको बहुत एडवांस पैथोलॉजी है, ऐसी कंडीशंस के अंदर, जैसे कि मेरे को याद है, आई एम टॉकिंग, मैंने तब बिल्कुल अब शुरू ही किया था क्लिनिक में बैठना अपने फादर के साथ, और बाई चांस की बात है कि उस दिन फादर नहीं थे और वो किसी काम से गए हुए थे, और एक पेशेंट को लेके आए, एंड वो अपनी माता जी को ऐसे उठा के लेके आए थे, एंड शी वाज जस्ट 30 kg और लाइक दैट, एंड उनको लंग कैंसर हुआ था, और जो भी उस टाइप पे ट्रीटमेंट किया जाता था वो सब कुछ किया गया था। उसके बाद उनको यहाँ पर एक ट्यूब लगा करके एक बैग लगा दिया था, यूरो बैग, जिसके अंदर वो शी वाज कॉन्स्टेंटली ब्लीडिंग, थोड़ा 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 उसमें से ब्लड जैसा डिस्चार्ज हो रहा था। उस पूरे इसको देखने के बाद मैंने जब उनको इग्नेशिया LM1 दिया, आप सरप्राइज हो जाओगे कि वो पेशेंट ठीक हो गई, से मतलब कितना ठीक हो गई कि वो 10 साल तक ठीक ठाक रही। वो हिमाचल में हम देखते हैं, एक जगह आप लोगों ने नाम सुना होगा, वहां की रहने वाली थी, और उसके बाद वो क्लिनिक में आया करती थी, कभी किसी को लेके आती थी, कभी अपने लिए छोटी मोटी तकलीफ लेके आती है। उसके बेटे ही रहते हैं दिल्ली में, बट शी नेवर डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, जाना तो एवरीवन, हेनमिन भी नहीं है, वो भी गए, बट देन उसको कैंसर से वो नहीं गई। इतना ऐसा पैलिएशन भी कैसा, पैलिएशन टू द लेवल ऑफ क्योर, ऐसे वाला कि वो 10 साल ठीक ठाक तरीके से रही। तो हेनमिन के हिसाब से the spiritual power of medicine attains its purpose not by quantity but by quality। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप होम्योपैथ हैं, आप होम्योपैथिक फिजिशियन, प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हैं, तो आपने एनर्जीज को अंडरस्टैंड करना है कि मेडिसिन की एनर्जी, पेशेंट की एनर्जी, बीमारी की एनर्जी,
आप इस रिलीम में, एनर्जी के रिलीम में हैं। इस रिलीम में रह करके आपने अपने पेशेंट्स को और अपने सब लोगों को देखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट हियरिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Pankaj sir. Now I request Dr. R.N. Vahi sir to give his remarks on the presentation of Dr. Pankaj Agarwal. पंकज, थोड़ा सा एक दो तीन कंफ्यूजन है। नंबर वन, आपने कभी किसी पहले प्रेजेंटेशन के अंदर आपने ये बोला था कि LM1 जो स्टार्ट होती है 30C के बाद होती है। उस वक्त में वो आपने उसको बेच दिया था, आज आपने दिया 3C। तो ये चेंज कब और कहाँ और कैसे ऑब्जर्व किया है? दूसरी सर, बात, मेरी कोई गलती हो सकती है कि मैंने 30C बोल दिया होगा, लेकिन ये एक्चुअली 3C है। मेरे को आई रियली अपोलोजाइज ऑन द प्लेटफॉर्म कि अगर मैंने कभी 30C बोला होगा, लेकिन ये हमेशा से 3C है और आज भी 3C है, उसी से बनता है। ठीक है। सेकेंडली, एक LM पोटेंसी में जितने भी फिजिशियंस उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एक कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइज अप्रोच नहीं है। इसके बारे में कैसे क्या आपका इरादा है, कैसे क्या क्या गाइडेंस है आपकी? ऐसा है कि ये मैंने जिसे कहा था अभी कि एक बड़ा ही टेलर मेड सिस्टम है, लेकिन कुछ बातें तो स्टैंडर्ड है ना, जैसे कि 3C से LM1 कैसे बनेगा और LM1 से LM2 कैसे बनेगा, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, स्टैंडर्डाइज्ड है। एग्रीड सर? ठीक है, ठीक है। बात आती है कि आपने उसका, ये भी एक बात फिक्स है कि आपने गोली कितना लेना है। क्या फिक्स है उसमें? एक गोली फिक्स नहीं है। जितनी ज्यादा पैथोलॉजी है, आप अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 पिल्स यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड 1 पिल है, बट अगर मान लीजिए कि पैथोलॉजी ज्यादा है तो हम 2-3 पिल भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि जो पिल आपने लिया उसको कितने पानी में डाइल्यूट करना है, 100 ml में करना है, 200 ml में करना है। ये वाली बात भी हमने आप फिजिशियन के अंडरस्टैंडिंग पे छोड़िए कि आप इसको कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन डिसाइड कर सकते हो। जितनी ज्यादा पैथोलॉजी और जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी, उतना आप क्या कर लो कि गोली ज्यादा ले लो, डाइल्यूशन ज्यादा कर दो, यानी कि पानी ज्यादा ले लो। तो हमको केस टू केस वेरी करना पड़ेगा। मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूं, मैं मेरी बात बता देता हूं कि मैं 100 ml की जो बॉटल आती है उसके अंदर मैं लेता हूँ 16 डोज। मैंने कलकत्ता में जो सीखा वहां पर यही सिस्टम चलता है। 16 डोज यानी कि 16 टीस्पून फुल ऑफ वाटर के अंदर, जो कि 1 ml के करीबन पानी हो जाता है, उसके अंदर एक गोली डालते हैं और उसको 10 स्ट्रोक लगाते हैं। स्ट्रोक में भी आपको 2 से लेके 12 तक का आपको एक रेंज दिया है। मान लीजिए कि पेशेंट की सेंसिटिविटी ज्यादा है तो आप उसमें सकशन से कम रहिए। उसकी अगर सेंसिटिविटी थोड़ी पुअर है तो आप स्ट्रोक्स पे ज्यादा जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे मेथड्स इसके अंदर निकल के आते हैं, बट कुछ बातें बड़ी फिक्स्ड हैं, वो बातों में कोई डिफरेंस नहीं है। और इसीलिए सबका अलग एक्सपीरियंस है। और आपका ये पॉइंट आउट करना बिल्कुल ठीक है कि हाँ भी इस तरह से सब लोग अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको ड्राई डोज भी यूज कर सकते हैं। हैनमैन ने ऐसा ड्राई डोज के बारे में कहीं नहीं कहा। ये लॉजिस्टिक, डॉक्टर पंकज, मैं उस पर ही आ रहा था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पर था कि डॉक्टर आर पी पटेल ने ड्राई डोज इस्तेमाल किया हुआ, तो ड्राई डोज क्या मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? नहीं, हैनमैन ने तो कहीं ड्राई डोज लेने के लिए कहा ही नहीं है LM पोटेंसी। बट आर पी पटेल ने किया हुआ है इस्तेमाल, तो वो चीज अगेन कंफ्यूजिंग हो जाती है। वो सर क्या है ना, लॉजिस्टिक इश्यूज है। मान लीजिए आपको यहाँ से किसी को दवा भेजनी है और कुरियर करनी है वो दवा, तो जो स्पीड पोस्ट वाले हैं वो लिक्विड नहीं लेंगे। फॉरेन कंट्री में लिक्विड को लेके और इश्यूज हो जाएंगे, सिक्योरिटी इश्यूज है। तो उन्होंने उस जमाने में क्या करा था कि चलो यार ड्राई दे के देख लेते। अब उनके एक्सपीरियंस में ये आया कि भाई ड्राई डोज भी वर्क करती है। तो
एक्सपीरियंस तो भाई ज्यादा बड़ी चीज है ना, तो इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता है उसके ऊपर। ये हो गया सारी बात। पेशेंट के साथ में भी वही प्रॉब्लम आ जाती है कि जो हम उसको डोज बना के देते हैं और उसको हम कहते हैं कि आपने डेली इसको सब्सक्रिप्शन देनी है, तो उसमें यह है कि कंफर्टेबल भी होता है और अनकंफर्टेबल भी होता है पेशेंट्स के लिए, दोनों बातें हैं। कुछ लोग प्रैक्टिस उसको कर लेते हैं, कुछ लोग को मजबूरी करना पड़ता है, अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि जो है लॉजिस्टिक्स सिचुएशन रह जाती है, वो भी है। तो अगर अच्छा, फिर अब क्या होता है कि हम जहाँ तक लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर हम करते हैं, तो एक कंसेप्ट तो होता है विच इज साइंटिफिकली आल्सो एक्सेप्टेड के वाटर मेमोरी है, वो रिटेन होती है उसके अंदर। लेकिन अगर वो उसको नहीं, उसकी वाटर मेमोरी हमें ये पता होना जरूरी है कि कितने दिन तक रह सकती है, अदरवाइज तो उस टाइम के बाद तो उसका असर खत्म ही हो जाएगा। उसके लिए हेनमन ने एक बात लिखी है क्लिनिकली, क्योंकि वो तो हेनमन के जमाने में तो इतनी साइंटिफिक डिटेल्स नहीं हुआ करती थी, अब होने लगी हैं। लेकिन उनका कहना ये था कि भाई इतनी डोज में आप डाइल्यूट करो कि इन ए वीक्स टाइम वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, तो आगे दोबारा बनाया जाए। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि सब्जेक्ट टू दी वेदर के मेडिसिनल वाटर जो है वो स्पॉइल ना हो, सबसे पहली बात तो ये ध्यान देने वाली है, क्योंकि बड़े आसानी से फंगस आ जाता है, सब आ जाता है। हाँ, वो बात ध्यान में देने की बात है। और कहीं ना कहीं आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि उसको एक पूरे टब पानी के अंदर आप डाइल्यूट कर लेंगे और वो वर्क करेगा नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। कोई ना कोई तो मैग्नीट्यूड है, और वो कहीं ना कहीं 100 ml 200 ml तक में आकर के कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। ठीक है। नहीं चलो, खैर अच्छा है, कई चीजें आपने अच्छी एक्सप्लेन की हैं, और उसको मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे और डिस्कशन होगा इसके ऊपर, तो सुधार तो आएगा, क्योंकि सबके अपने अपने अलग एक्सपीरियंसेस होंगे। जब एक्सपीरियंसेस बिना बिना किसी झिझक के अगर शेयर करते हैं कि कहाँ फेलियर है, क्या प्रॉब्लम आती है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट तो आएगा, ऐसे मेरा मानना है। ठीक बात है सर। थैंक यू सो और मच डॉक्टर वानी सर। सॉरी, हाँ जी सर, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, कुछ और किसी की कुछ क्वेरी है? अगेन वही आ जाता है कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस हम सेंटेसिमल स्केल मैक्सिमम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बट वेरी ऑनेस्ट। और शायद उसका रीजन ये भी है कि डॉक्टर इंडिया के अंदर जो एलएम पोटेंसीज का जो शुरू हुआ है, वो डॉक्टर हरिमोहन चौधरी के प्रेजेंटेशन उसमें उसके बाद शुरू हुआ है, मगर दैट वाज इन द ईयर 1963। 63 से पहले पब्लिकेशन इंडिया में यहाँ पर नहीं आई थी। क्रेडिट इंडिया में लाने का गोes to हरिमोहन चौधरी। यस सर, यस सर, यस सर। तो सारा वो 5th एडिशन तक ही चलता था, जितने हमारे टीचर्स थे सब उसके। तो मे बी के वी गॉट perhaps more accustomed to film potential to centesimal scale or decimal scale. Gradually, by getting learning every day, तो अब धीरे करके एलएम पोटेंसी पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ है। बट मैं ये नहीं कहूँगा अभी भी, आज भी, कि हाँ पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ गया। तो वहाँ पर अपनी तरफ से सिलेक्शन में उसकी या पोटेंसी के अंदर कहाँ आती है, ये आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। ठीक बात है सर। बल्कि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं, डॉक्टर साहब आप जादू टोना करते हो क्या कुछ, ऐसे करके लोग कमेंट करते हैं एलएम पोटेंसी की बात को, क्योंकि जनरली देखते नहीं है लोग, यूज नहीं करते हैं। और आप तो जानते हैं सर कि अब रिसेंटली ही विल्बर शॉबे और एसपीएल इन लोगों ने एलएम पोटेंसी बतानी शुरू की है। इससे पहले तो रेयरली कोई बनाता था, हेप्को बनाता था, उसके बाद में हरिमोहन चौधरी के बेटे हैं उन्होंने बनाना शुरू किया, और नहीं तो कम ही लोग बनाया करते थे, डिफिकल्ट था प्रोक्योर करना। बिल्कुल बिल्कुल। और हेप्को का तो रेंज बहुत कम था, आज भी बहुत ज्यादा नहीं है, और उन्होंने रेंज बढ़ाया है। यस। पर वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है, जो कि ट्रेड की प्रॉब्लम मैं कहूँगा, बिकॉज मैं देखता हूँ जो सक्सेसिव पोटेंसी सारी नहीं रख सकते हो आप, उसकी हाँ, डिमांड ये आपको स्पेस का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए कई लोग क्या करते हैं कन्वीनियंस के लिए 01 03 05 ऐसे करके यूज कर लेते हैं। 0.5 तक तो फिर भी, उसके बाद में तो फिर 10 20 30
0/30 से आगे एनिम्पोटेंसी कोई बना रहे हैं। नहीं, 30 तक ही होना चाहिए है में 1 to 30, और अगर वही दवा की जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से 0-1 से यूज करो, ये डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे इसके बाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज सर। आई थिंक आगे आने वाले सेशंस में डॉक्टर पंकज सर, अगर हम क्लिनिकल यूटिलिटीज पे बात करेंगे और आप कुछ केसेस डिस्क्राइब कर पाएंगे, बिकॉज थ्योरेटिकल पार्ट ऐसा है कि जो हम लोग पढ़ते ही आए हैं रेगुलरली, और तब भी मुझे तो ऐसे लगता है जब मैं आपको सुनती हूँ, डॉक्टर सुभाष सिंह सर को भी सुनती हूँ, और भी जो स्पीकर्स हैं जो एलएम पोटेंसीज पे, ऑर्गेनॉन पे काफी कुछ शेयर करते हैं अपने व्यूज, तो कुछ ना कुछ एक नई चीज ही है जो मैं हमेशा एलएम पोटेंसी के बारे में समझ पाती हूँ या आधा अधूरा समझ पाती हूँ। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे जो हम सेशंस लेंगे तो आप उसमें अगर कुछ केसेस हमें दिखा पाएंगे एंड हाउ यू यूज्ड एलएम पोटेंसीज इन दोस केसेस, तो कुछ हमें हेल्प ज्यादा हो पाएगी उसमें। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल ठीक है। आप मेरे को कभी भी सेशन देंगे तो मैं एलएम पोटेंसी के केसेस ही डिस्कस करूंगा, और थ्योरी आप लोग सवाल के रूप में पूछेंगे तो मैं जवाब के रूप में बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज सर फॉर योर टाइम टुडे, एंड आपका सेशन हमेशा ही एनरिचिंग रहता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, सो वी थैंक यू फॉर दैट। एंड अब आपकी डॉटर भी आगे आ रही है आपके साथ साथ ही, जैसे डॉक्टर भावना ने कहा, एक लेगेसी चलती आ रही है। नहीं, तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ बहुत जी, हाँ जी। ऑब्जर्वेशन काफी अच्छी है। तो नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा, हम लोग चाहेंगे कि हम उनको भी सुने, उनके एक्सपीरियंसेस भी, कि उन्होंने आपसे, आपके फादर साहब से क्या सब सीखा है, तो वो भी यूजफुल रहेगा यंगस्टर्स के लिए आई थिंक। बहुत अच्छा होगा। अभी इस तरह का हमने एक टुगेदर वाला एक सेमिनार किया था, डॉक्टर एम के साहनी करते हैं उनके साथ में, हाँ और जी एक सर। बहुत अच्छी स्टडी हमने की है मेलेंड्रिनम के ऊपर। कभी भी आपका शेड्यूल होगा तो आप दीजिएगा, तो हम दोनों लोग ही बोलेंगे और उसमें, और उसने बहुत अच्छा काम मेलेंड्रिनम के ऊपर किया है। हम उसकी पूरी केस सीरीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेलेंड्रिनम का आज के टाइम में कितना जबरदस्त यूसेज है, आप लोगों को उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हम लोग उसमें दे पाएंगे। Thank you so much, Dr. Pankaj, and we will surely invite you again with your daughter on this platform of IHF. और कोशिश यही रहेगी कि आपसे कुछ और नया सीखें, आपकी डॉटर भी हमें कुछ नया सिखाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। Thank थैंक you यू very सो much. मच। Thank you, Anil. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, Anil bhai, sir. Thank you, And everyone, all the listeners. Thank you so much. And before we close down, we have this campaign, Let's Learn Together, an initiative by Team IHF to spread knowledge and share with your friends, homeopathic professionals, and students. You can send us your learnings, your teachings from the books, sources, journals, magazines, and send your participation to the mobile number given on the screen through WhatsApp, or you can mail us also to ihf.webinars@gmail.com. So I also request Dr. Pankaj Agarwal sir कि आप भी contribute करें, आपकी daughter भी contribute करें इस campaign में, so that एक youngsters को भी एक बहुत अच्छा encouragement मिलेगा। Sure, sure. मैं जरूर करूँगा। Thank you, thank you. And our presence is there on social media through Instagram, YouTube, Facebook, and our website www.ihfworld.org. We will be putting up this webinar as well on our YouTube channel, and we will circulate that in our groups. So thank you so much everyone for joining. Thank you, Dr. Pankaj Agarwal sir. Thank you, doctors, students, practitioners, and above all, team IHF, who has been constant doing hard work. We are learning from each other and we are making these events successful. Thank you so much. Thank you. And kindly give me permission to close down. You can now. Thank you. Thank you, sir. Thank you. ताकि मैं थोड़ा सा भोजन कर सकूं। Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. Thank you.